ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੋਨ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਓਨੇ ਬਰਤਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ नहीं खड़क रहे जिन्ना दूसरे घरों तो आवाज आ रही है। ठीक है, फिर और नॉन इश्यूज़ हम जिन पे अटकते हैं, यहाँ पे आने से पहले या यहाँ पे आने के बाद भी कि हम सोचते हैं शादी कर दो। हम कहते हैं अगर शादीशुदा है तो बच्चे कर लो, इसको कोई काम बाहर भेज खुलवा दो। दो, इसको बाहर भेज दो, है ना? इसको बिज़ी कर दो, इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाल दो। हम्म। ये सारे हमारे नॉन इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम और दूसरी बीमारियों में कभी भी ये डिसिज़न्स नहीं लेते, ठीक है ना? पर इस बीमारी में हम सब ये डिसिज़न्स लेते हैं। अचानक पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जबकि पिछले बहुत सालों से हमारा बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा होता, हमारा लव्ड वन। पर अचानक यहाँ पे आते ही ना, हमारे पेशेंट के लिए भी और फैमिली के लिए भी, कोई वीज़ा लग रहा है, कोई नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लोग बहुत ज़्यादा अपने ट्रीटमेंट को सैबोटाज करते हैं। फिर वीज़ा लग गया है, इसके लिए लोग अपने ट्रीटमेंट को सैबोटाज कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये नॉन इश्यूज से आज हम डिस्कस करेंगे कि इश्यूज क्या है। हमारे यहाँ पे हम बैठे हैं, जब हम इस हॉस्पिटल में पहुंच ही गए हैं, तो आज हमारा मेन मुद्दा है क्या यहाँ पे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ? सबसे पहला इश्यू है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इस ट्रीटमेंट को जैसे हम अपनी कॉपी में लिखते हैं ना, ओम ओम ओम, कॉपी के पेजेस भरते हैं, राम राम राम, वाहे गुरु, उसी तरह आप लोग अब ट्रीटमेंट 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 को समझिए कि ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कि ट्रीटमेंट इज द ओनली थिंग। ट्रीटमेंट किसका होता है? आदतों का, डिजीजेस का। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले ट्रीटमेंट का मतलब है कि एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੂ ਮੈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ। ਡੀਟੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਡਰੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਟੂ 10 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਡੀਟੌਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਡੀਟੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਡਰੋਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਡਰੋਲਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ हम्म। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਦਾ ਡੀਟੌਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20% ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ हम्म। ਡੀਟੌਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20% ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯੂਰੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੀਹੈਬ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੀਟੌਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ऑब्जर्वेशन ਕਰਾਉਣਾ। तो यहाँ बैठ के ना ये जो 7 से 10 दिन में हम पेशेंट को स्टेबल करते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो ही मौका हम यूज़ करते हैं फैमिली को भी स्टेबल करने के लिए।
यहाँ पे 7 से 10 दिन रह के आप कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपके साथ फैमिली सेशंस होते हैं, आपको डिज़ीज़ की क्लैरिटी दी जाती है, आपकी पेन को पहली बार सुना जाता है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने हमारी पेन कभी सुनी थी हुँ, या किसी ने हमारे को यही बोला था कि तुम कितने पेन में हो। बिल्कुल। यहाँ पे मोस्टली हमारे को पहली बार बोला जाता है कि तुम कितने पेन में हो, क्योंकि हम इतने सालों से खाली अपने पेशेंट की पेन के साथ जी रहे थे। हमारी पेन की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे अगर पेशेंट का डिटॉक्स हो रहा है तो आपका भी हो रहा है, और कहीं न कहीं आपकी तैयारी हो रही है कि आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो फ़ॉलो अप ट्रीटमेंट है, चाहे वो रिहैब ट्रीटमेंट है, आप उसके लिए रेडी हो। हुँ, आपका दिमाग जो क्लोज़्ड हो गया है ना डिज़ीज़ की वजह से, डिज़ीज़ की पेन को गो थ्रू कर के, कहीं न कहीं वो ओपन होए। कहीं न कहीं आपको अपनी डिज़ीज़ के पूरे फीचर्स पता चलें, आपको ये पता चले कि ये बीमारी है क्या और इस बीमारी को मैंने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि यहाँ पे इस बात की हम सब क्लैरिटी ले लें कि हमारे जो ब्रेन के डिज़ीज़ेज़ हैं, वो ट्रीटेबल हैं पर क्यूरेबल नहीं है, क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ हैं। हुँ, इन चीज़ों को ना हम, जैसे हमने पहले ब्रश असाइड किया या अंडर द कारपेट किया, यहाँ पे हम नहीं करते हैं। हम बार-बार, बार-बार अपने आप को भी और आप लोगों को भी ये रिमाइंडर्स देते हैं। इतनी ही बार हमें ये रिमाइंडर्स चाहिए, क्योंकि फिर से वो हमारे नॉन इश्यूज़ आके ना हमारे को क्रॉनिक नेचर अमन बिल्कुल। और ये जो डिज़ीज़ की जो सिवियरिटी है ना वो भुला देता है। हुँ। थोड़े से हमारे अच्छे दिन आते हैं, थोड़े से हम रिकवरी के कुछ पल देखते हैं, तो साथ ही वो क्रॉनिक नेचर, वो सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ हमारी फिर से हमारे माइंड में हमारा भी चिम्ब्रेन ऑन हो जाता है। नॉन इश्यूज़ फिर ऊपर आ जाती हैं।